A very good evening to you all, and I hope that you all are good, you all are safe, है ना, and you people are studying at home. चलो, and I hope that the portion of the fourth chapter that we have discussed, so you people have discussed that portion, is it so? So you people have read it, and I hope that you people have no confusion or no doubt regarding anything till the topic we have discussed, because you people have not asked any questions from me, so that's why I think that you people have no doubt or no confusion till this topic, till the topic which we have completed, is it so? Yep. Okay, अब आगे, as I have said you earlier, that in the third chapter, that is to read the valency and all, है ना, and after reading the valency, learn it and then practice some chemical formulas. So I will be giving you some questions, you will solve it, okay, and then you will submit it to me, okay. Now coming back to the chapter number 4. So the last day we ended our class on the discussion of the topic atomic numbers and mass number, is it so? So I was telling you about the atomic number. So atomic number, what is the meaning of the atomic number? Means suppose if I am telling that atomic number of oxygen is 8, है ना, I am telling that atomic number of oxygen is 8. I have told you that atomic number is written in the bottom and the mass number is written at the top, है ना. This is the representation, is it so? Yep. तो देखो, oxygen's atomic number is 8. Means what? Means that the number of protons in oxygen atom is equals to 8 and the number of electrons is equals to 8. देखो मैं बहुत important बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को, that the number of electrons equals to 8 and the number of protons equals to 8. अभी suppose करो, suppose कि this oxygen has taken 2 electrons for maintaining its stability. To attain stability, this oxygen element has taken, what this oxygen element has taken 2 electrons from any other atom. ठीक है? Okay, अभी देखो. If it will take 2 electrons, if it will take 2 electrons, means it will become O2 minus. Okay. In this case, when it has taken 2 electrons, how many electrons are there? So number of electrons, अभी at this point तुम लोग का दिमाग जो है थोड़ा सा खराब में भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि नहीं होगा दिमाग खराब, एंड ये भी हो सकता है कि मे बी हो भी जाए. ओ माय गुडनेस, ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 कैसे हो गया एंड प्रोटॉन 80 है, कैसे भाई? तो आई विल टेल यू कि नॉर्मली क्या था, नॉर्मली जब ये एक एटम था, जब ये आयन नहीं बना था, तो इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, ठीक है. अब ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है किसी से, तो अब जब हम ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? पहले मेरे पास 8 था, अब मैंने और 2 ले लिया है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. लेकिन प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ, बिकॉज प्रोटॉन ना मैंने लिया है ना मैंने डोनेट किया, नीदर आई हैव एक्सेप्टेड नॉर आई हैव डोनेटेड, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स द सेम एज द एटॉमिक नंबर. तो क्वेश्चन ये एक्चुअली आता है, मैंने इस चीज़ को जिसके लिए तुमको समझाया, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल भी देके तुमको समझा सकता हूँ. जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल ऑफ, है ना, मैग्नीशियम. देखो
एटॉमिक नंबर 12 है, ये मैग्नीशियम एटम एलिमेंट का। अब मैं मैग्नीशियम आयन लिखता हूँ Mg2+। यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो गया, 12 था 10 हो गया। कैसे भाई? बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया ना, 2+ है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया, तो इसके पास तो नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख के भी हम लोग एटॉमिक नंबर बताते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम लोग एटॉमिक नंबर सही नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर इस केस में हम मैग्नीशियम 2+ के केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, तो मैं ये क्या बोलूँगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 10 है? नहीं बोलूँगा ना, बिकॉज मुझे पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो इसका ये मतलब है कि कभी कभी इन द केस ऑफ आयंस हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख के एटॉमिक नंबर नहीं बताते। इसीलिए हमेशा यही हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर किसी का भी एटॉमिक नंबर बताना है मुझे, तो आई विल चेक द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना है दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। वही एक एक्यूरेट अगर बोला जाए तो एक्यूरेटली अगर करना है हमको हमेशा, कि कभी भी भूल मत हो, कभी भी भूल मत हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में क्या है कि कभी इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, वो एलिमेंट जो भी है ना। कभी कभी नहीं भी देगा, नहीं भी लेगा, तो सेम ही रह जाएगा। तो वो चेंज हो सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का नंबर। लेकिन प्रोटॉन का नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम नेवर चेंजेस। तो हम लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि अगर कभी मुझे एटॉमिक नंबर पूछता है तो हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही लिखना चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से एटॉमिक नंबर बताना तुम लोग, ये एक बात मुझे बताना था जो मैं बता दिया। दूसरी बात है कि लास्ट डे हम लोगों ने मास नंबर का भी डिस्कशन किया था कि मास नंबर कैसे निकालना है। तो मास नंबर मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उस फॉर्मूला को अगर मैं लिखता हूं फिर से तो क्या लिखूंगा बताओ? मास नंबर इज इक्वल्स टू number of protons plus number of neutrons, है ना। तो ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अब आते हैं सेकेंड थिंग पे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये। ओके, देखो तो अभी हम लोग को दो चीज पढ़ना है, दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीज देखो। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तुम लोग बोलेंगे सर व्हाट इज दिस आइसोटोप आइसोबार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आई विल टेल यू कि तुमको समझ में आएगा भी नहीं, बिकॉज तुम लोग आज ये नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। तो फर्स्ट टाइम सुनोगे तो फिर कैसे समझ आएगा, है ना। तो दिस इज द थिंग। तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। अभी we have many elements, पहले भी मैंने बताया है that we have 118 elements, out of that 96 are your naturally occurring elements, out of that 74 are metals and all, बहुत सारे calculations मैंने तुम्हें बताए हुए हैं। अभी in the periodic table where all the elements are arranged in the order of their increasing atomic number, उन लोगों के increasing atomic number के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक पीरियोडिक टेबल में। अभी जब हम लोग एलिमेंट्स को देखते हैं, एलिमेंट्स का मास नंबर देखते हैं, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देखते हैं ना। अभी हम लोग देखें एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग होगा, सबका अपना मास नंबर भी होगा, है ना। सबका अपना अपना मास नंबर होगा। किसी का मास 1 तुम पढ़े हो, किसी का मास हीलियम का 4 पढ़े हो, ऑक्सीजन का तुम 16 पढ़े हो, नाइट्रोजन का तुम 14 पढ़े हो, सोडियम का 23 पढ़े हो। इज इट सो?
अच्छा, तो उस तरीके से हम लोग पढ़े हैं। अब द क्वेश्चन इज कि कभी कभी हमको ऐसा एलिमेंट्स भी दिखता है, जैसे कि मैं तुमको लिख के दिखाना चाहूंगा कि कैसा एलिमेंट दिखता है मुझे। देखो C612, C614, 1H1, 1H2, 1H3, है ना। क्लोरीन जो होता है हमारा, है ना, ये दोनों ही तुम देखो, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि कार्बन जो है, कार्बन, और कार्बन, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन दो अलग अलग कार्बन हम लोग लिखे हैं। एक कार्बन का मास देख रहे हैं 12 और एक कार्बन का मास देख रहे हैं 14, जबकि उसका एटॉमिक नंबर इज सेम। वहीं पे एक हाइड्रोजन देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर 3। यहाँ पे क्लोरीन देख रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है, ओके। एक और क्लोरीन दिखा जिसका एटॉमिक नंबर तो 17 ही रहा लेकिन मास नंबर चेंज हो गया। तो ऐसे एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स whose atomic number is same but the mass numbers are different, ऐसा होता है। जैसे मैं तुमको बता दूं, नेचुरल कार्बन जो है which is found in the nature, that is this one, C612, and this one is the C614 is the radioactive carbon। इसको नोट डाउन कर लो तुम, C614 is the radioactive element, this is the radioactive carbon। Similarly, ये जो नॉर्मली हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो दिस वन 1H1 इज द नॉर्मल वाला हाइड्रोजन जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। दिस इज टू अदर फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड इसका नाम भी मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो इन केस तुमको जरूरत पड़ जाएगा भी। तो 1H2 इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, एंड 1H3 इसका नाम है ट्रीटियम। समझ गए? तो ये दोनों रेडियो एक्टिव है, ये भी याद रखना है। सिमिलरली Cl1735, दिस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ क्लोरीन विच इज फाउंड, जो तुम लोग भी पढ़ते हो 17 वाले के बारे में, 35 उसका मास है। दिस इज द रेडियो एक्टिव क्लोरीन, दिस इज द रेडियो एक्टिव क्लोरीन। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स, आइसोटोप्स का मतलब क्या होगा कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स, such elements which have the same atomic number, they have the same atomic number, देखो 66, 111, 17 17, but they have different mass number। देखो 17 17 है लेकिन 35 37 है, 111 है लेकिन मास देखो 1 2 3 है, एटॉमिक नंबर 66 है लेकिन मास देखो 12 और 14 है। तो those elements which have same atomic number but different mass number are called isotopes। समझ गए? अच्छी बात है। अब तुम लोग बोलोगे सर व्हाट इज आइसोबार, ये भी बता ही दीजिए। तो मैं बोलूंगा लिख लो ना भाई, एकदम आइसोटोप का उल्टा। आइसोटोप में क्या हुआ? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट, सॉरी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार में क्या होगा कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल, कैल्शियम 20 40, आर्गन 18 40। दिस इज एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट्स लिया, एक लिया आर्गन एंड एक मैंने लिया कैल्शियम। The atomic number of argon is 18 and the atomic number of calcium is 20, but their mass numbers are same, 40 and 40. So such elements which will have the same atomic mass but the different atomic numbers, they will be known as isobars. Means calcium and argon are isobar, whereas C612 and C614 are isotopes. 1H1 and 1H2 are isotopes. Cl1735 and Cl1737 are isotopes। समझ गए? तो those
which have same atomic number but the different atomic masses, they will be known as isotopes. Those who have same atomic mass but different atomic numbers, they are known as isobars. And this isotope isobar example is very 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 important 1 mark question for your exam. एकदम से समझ गए? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, चलो ओके, चलो बढ़िया। अभी देखो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है, तुम लोग खुद ही सोचो कि अगर एक एक एलिमेंट जो है, जैसे कि हाइड्रोजन ही है जिसका 3 अलग अलग फॉर्म्स मिल रहा है हमको, क्लोरीन है जिसका 2 फॉर्म अलग अलग मिलता है, कार्बन भी है जिसका 2 अलग फॉर्म मिलता है, नाइट्रोजन का भी 2 अलग अलग फॉर्म मिलता है हम लोग को, मैंने लिखा नहीं है। तो क्वेश्चन है कि सर इफ वी विल कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो हम लोगों को तो सारे ही एलिमेंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा ना। नाइट्रोजन अगर हम लोग बोलते हैं तो सारे ही नाइट्रोजन, जैसे मान लो मैं कार्बन का मास लिखता हूँ, तो इफ़ आई एम कैलकुलेटिंग द मास ऑफ कार्बन, तो हमको जितने भी कार्बन एलिमेंट्स मिलते हैं, वेदर इट इज़ नेचुरल और इट इज़ रेडियो एक्टिव, सारे के ही कैलकुलेशंस को हमको ध्यान दे के एक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो समझ में आ रहा है चीज़ की, जैसे मान लो कि क्लोरीन है, क्लोरीन 17Cl35 भी होता है, 17Cl37 भी होता है। अब हम तो हमेशा 2 क्लोरीन नहीं लिख सकते हैं ना मास, कभी 35 मन किया तो लिख देंगे, कभी क्लोरीन का मन किया तो 37 लिख देंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास एक एलिमेंट का एक मास होना चाहिए। अब अगर एक ही मास करना है हमको, तो क्या है, वो 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके मास का एवरेज निकाल लेना पड़ेगा, है ना। तो एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लेना पड़ेगा, किसके केस में, आइसोटोप्स के केस में हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ जाता है। बिकॉज हम 2 या 3 एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो कभी हम हाइड्रोजन का मास 1 लिख दिए, कभी हम हाइड्रोजन का मास 2 लिख दिए, कभी हाइड्रोजन का मास 3 लिख दिए, बोले अरे सर कोई बात नहीं है, चलिए कभी 2 लिखेंगे, कभी 3 लिखेंगे, कभी 1 लिखेंगे। तो इट डजेंट हैपन्स लाइक दिस, इट शुड बी फिक्स्ड। तो फॉर फिक्सिंग द एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है, हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है, समझ गए। तो आइसोटोप्स के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास। अभी तक क्वेश्चन इसकी, सर ये एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मास नंबर इनटू एबंडेंस प्लस द मास नंबर ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू अबंडेंस। ये फॉर्मूला तुम लोग बस लिख लो, मैं क्वेश्चन अभी बताता हूं तुमको। देखो क्वेश्चन तुम कॉपी कर लो, मैं तुमको जस्ट रिपीट कर देता हूँ, फटाफट कर लो कॉपी। कहाँ मिलेगा क्वेश्चन, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो कि इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल। अगर तुम लोग क्वेश्चन देखा है तुम लोग देख सकते हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज इसी चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो क्वेश्चन मैं तुमको करवाऊंगा एंड उसी से तुमको समझाऊंगा, फटाफट देख लो उसको, ठीक है। कि इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप से 35Br79 का 49.7% अबंडेंस एंड 35Br81 का 50.3% अबंडेंस, तो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे निकालेंगे, देख लो। तब जिसका मास 79 है उसका अबंडेंस 49.7 है, तो क्या करना है, आंसर में 79 इंटू 49.7 प्लस दूसरे वाले का मास कितना है, 81 इंटू 15.3, 81 इंटू 50.3, इसको ऐड करो कितना आएगा, 79 इंटू 49.7 विल गिव यू हाउ मच, oh my god,
This will be your 80 minus 1 into 50 minus 0.3 plus 80 plus 1 into 50 plus 0.3, है ना। अभी इसको कोई फॉर्मूला में लगाया जा सकता है क्या? लग तो नहीं रहा। It is not coming under any formula, तो you will have to calculate it and after the calculation तुम लोगों को कुछ आंसर मिलेगा। मैं देखता हूँ क्या आंसर है इसका, देख के मैं तुमको बताता हूँ क्योंकि मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो इसका आंसर है 80.006। तो इसका आंसर आएगा 80.006। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एक आइसोटोप, जिसका कोई भी एलिमेंट जिसका आइसोटोप है, तो उसका अबंडेंस अगर हमको पता है कि वो कितना परसेंट अवेलेबल है, कितना उसका अबंडेंस है अर्थ पे, एंड उसका मास हमको पता है, तो मास से अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट करके उसके एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? ये है कहानी, ठीक है। ओके, अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो बचा है हमारा इस चैप्टर में वो है एप्लीकेशंस ऑफ तुम्हारा आइसोटोप। तो तुम्हारे बुक में एप्लीकेशंस में 3 एप्लीकेशंस मिलेंगे, वो तीनों को तुमको लिखना भी है एंड उसको लर्न भी करना है, बिकॉज एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई मीन इट। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये तीनों जो एप्लीकेशन है, जिसमें तुम्हारा एक एप्लीकेशन जो तुम्हारा थर्ड वाला एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग आइसोटोप को मेडिसिनल यूज में ले रहे हैं, है ना, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। सेकेंड वाले में भी कोबाल्ट के आइसोटोप को हम लोग मेडिसिनल यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज करते हैं। एंड फर्स्ट वाला जो हमारा है, वो जो यूज है उसका जो एप्लीकेशन है वो हम लोग किस में यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हम लोग यूरेनियम के आइसोटोप को यूज़ करते हैं। तो ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये तुम लोग को जानना चाहिए। लर्न कर लेना, लिख लेना कॉपी में एंड बस पढ़ लो अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मेरे से पूछो। चैप्टर नंबर 3 का मैंने होमवर्क नहीं दिया था, तो चैप्टर नंबर 3 का इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 4 का इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज you should complete within this week. Means today is your Monday, so within Saturday or Sunday you should complete the question and answers in text and exercise question and answer of chapter number 3 and chapter number 4. If any problem in doing the questions, you can tell me, you can message me, you can call me, जो भी तुमको लगे तुम कर लेना। Okay, so that's all for today and that's all for this chapter. Next we'll be starting the next chapter in the next class. So that's all for today. Take care. Okay, chalo, bye.